کو یہاں ایک بات یاد دلاؤں اگین کہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ پیٹ کی بیماری سے اگر اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، کیونکہ یہ سب سے آپ کا سارا فوکس آپ کی کور جو ہے. آپ سوچیں بچہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے، کہاں سے نیوٹریشن لیتا ہے، آپ کا امبلیکل ایریا ہے نا سارا. بالکل اٹس یور گٹ. بالکل بالکل. اچھا اٹس ناٹ ایون اونلی دا کھانا، دا پینا آلسو. یہ ہے نا کہ ہیپینس از اے برتھ رائٹ. ہمیں صرف یہ طریقہ جاننا ہے. ہیپینس کوئی وہ گول نہیں ہے کہ کہیں وہ ہوگا تو ہم ہیپی ہوں گے. دبئی میں تو منسٹری آف ہیپینس ہے. ہاں مطلب ہمارے یہاں ہو سکتی ہے منسٹری آف ہیپینس. اگر پلیز ہو تو آپ مجھے نہیں چاہیے. مجھے ہماری منسٹریز اچھا کام کرنا شروع کریں تو ہم ہیپی ہو جائیں گے. یہ بات بھی اچھی ہے. لیکن ہم اپنی بھی تو ایک انڈیویجول منسٹری بنا سکتے ہیں نا. وائی ڈو وی ایون ہیو ٹو ویٹ کہ کوئی منسٹری آئے؟ ہم اپنی منسٹری بنائے نا. ہیپینس از اے برتھ رائٹ. صرف رائٹ کو پریکٹس ہمیں کرنا نہیں آتا. تو جب آپ صبح اٹھے مائنڈفل اس شکر گزاری کے ساتھ اٹھے کہ اللہ پاک نے آپ کو بھرپور صحت کے ساتھ جو ہے نا آج آپ کی آنکھ کھلی ہے جس میں آپ کو کوئی درد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس چھت ہے، آپ کے پاس آپ نے بہترین نیند اپنی کی ہوئی ہے، آپ کی باول موومنٹ ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنی مائنڈفل ایٹنگ کریں کہ آپ کے لیے کیا چیز صحت بخش ہے. آپ اپنی ایکسرسائز کو ریگولرائز کریں. جو آپ کے لوگوں میں جو آپ کے گھر میں جو کنیکشنز ہیں آپ ان کے لیے شکر گزاری کریں کہ الحمدللہ میرے ساتھ یہ تمام لوگ موجود ہیں. بیٹ یور پیٹ. آئی ہیو اے پیٹ سو آئی ایم اے کیٹ مام. تو جو بچے آتے ہیں نا صبح صبح میاؤ میاؤ کرتے ہوئے، اس سے زیادہ تو خوشی والی صبح ہو ہی نہیں سکتی کہ سارے بچے موجود ہیں. بس اپنی انڈیویجول منسٹری ہے نا، جس کو جہاں سے بھی جو خوشی ملے وہ وہاں پہ اس چیز پہ فوکس کرنا شروع کر دے. پھر اس میں آپ کے دن کے جو گولز ہیں، ٹی وی پہ آنا ہے، کسی کی کوئی پڑھائی ہے، ایوری تھنگ. جب آپ پھر رات میں یہ پوری پریکٹس کر کے انکلوڈنگ یور ایکسرسائز اینڈ ایوری تھنگ اینڈ لاٹس آف فلوئڈ انٹیک، جب آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی تو اب ہیپینس تو خود ہی اندر سے جنریٹ ہو جائے گی. اچھا یہ میں اس لیے کہہ رہی کہ مجھے منسٹری آف ہیپینس دینے کے بارے میں کچھ سوچا جائے، کیونکہ بھائی جو 2 گھنٹے ہوتے ہیں نا ایسے ہم بیمار ہوں کچھ بھی ہوں گے، ہم بولتے ہیں یار 2 گھنٹے میں لوگوں کو انٹرٹین کر دوں. اور یقین مانے یہ میں بیمار بھی ہوں نا، مجھے میری میں کہتی ہوں تم کیوں جا رہی ہو، پاؤں میں پلسٹر ہے. میں نے کہا میں جاؤں گی نا 2 گھنٹے شو کروں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، میری تکلیف کم ہو جائے گی، میں خوش ہو جاؤں گی. سو کبھی کبھی لوگوں کو خوش کر دینا بھی آپ کے لیے بہت بڑی ایک خوشی ہوتی ہے. جناب مجھے اب جانا بریک کی طرف، کہیں مزہ آئے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا آپ لوگ خوش ہیں. رادر یہ سوال آپ لوگوں سے کیا خوش ہیں. ایک سوال جو میں آپ سب لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے ایک کالر کے فون آیا تھا نوشین کا، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. تو کچھ لوگوں کی ایسی زندگی بھی ہو جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ ہم اکثر کپلس دیکھتے ہیں، 2 بہت اچھے بہترین انسان ہوتے ہیں لیکن وہ جب ساتھ میں مل کے رہ رہے ہوتے ہیں دے آر ناٹ ہیپی ٹوگیدر، کیونکہ آف کورس کچھ ایسی فرکشنز بھی ہوتے ہیں، کہیں کہ رہنا مشکل بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایٹ واٹ ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ڈیسیجن لینا چاہیے یا پھر ان کو کام کرنا چاہیے کہ نہیں مل کے کوئی ایک چیز ڈھونڈے جس پہ ہم خوش ہو جائیں؟ کیونکہ ایسے بہت سارے ہمارے آس پاس کپلز ہیں جو کہ ناخوش ہیں لیکن وہ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ ہیپی ان دیئر لائف. آئی تھنک ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ خود ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ اگر واقعی برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو وہ ڈیسیجن آپ کے علاوہ کوئی لے نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے برداشت کی. دوسری بات یہ کہ آئی تھنک ہمارے اب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، بہت زیادہ فوکس سیلف پہ ہو گیا، اپنے آپ پر، خود ہی پر نہیں، اپنی ذات پر. میں کیسا دکھ رہا ہوں، میں کیسا نظر آ رہا ہوں، میری کیا ریکوائرمنٹ ہے، میری بہت تھوڑی سی سیلفشنس بڑھ گئی ہے لوگوں میں. کسی حد تک ہونا نارمل بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ گیور بنتے ہیں نا، جب آپ کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ خوش ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایز اے میرڈ کپل، جو میں نے سیکھا اپنی زندگی میں کہ بہت ساری چیزیں جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. مائی ہسبینڈ واز اے اسپورٹس بف. مجھے تو کوئی مار کے پیسے دے کر بھی کہنا کہ کوئی اسپورٹ کھیلو، میں نہیں کھیل سکتی، بٹ آئی وڈ جوائن ہم ان دوز. خوشی دیتی تھی. اور کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جب میں ان کے ساتھ جاتی ہوں اور وہ پتہ ہی انجوائز اٹ سو مچ، وہ زیادہ انفیکشس ہوتا تھا. مجھے ان اسپورٹس کی سمجھ بھی آنی شروع ہوگی، میں نے انجوائے بھی کرنا شروع کر دیا. مجھے تھیٹر، پینٹنگز، ایگزیبیشنز، ان چیزوں کا شوق تھا.
he started going with me to those events. And he said कि now I enjoy it. You know, हम कवालियाँ भी सुनने जा रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, जिस शख्स को उर्दू नहीं आती वो कवालियाँ सुन रहा है बैठ के. तो I think जब आप एक दूसरे को देना शुरू करते हैं ना किसी भी रिश्ते में, तो जब दूसरा खुश होता है आपकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन से, छोटी सी सैक्रिफाइस से, तो वो भी खुश होता है और आप ज़्यादा खुश होते हैं. जहाँ आप अपने आप को हावी करना शुरू करते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि अपने आप को बैक बर्नर पे डाल दें. तो ये दोनों की मुश्तरका एफर्ट है. अगर एक शख्स गिव करता रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने एक लाइन पढ़ी थी दैट यू मैरी योर अनफिनिश्ड बिजनेस. तो जो चीज़ें आप रिजॉल्व नहीं करते ना अपने अंदर, वो आपका पार्टनर लेकर आ जाता है. ठीक है, और दोनों लोगों ने उस पर काम करना होता है. यूजली जब मैं काउंसलिंग जब आते हैं कि आपको मुकम्मल करे, फिर वो वाली बात हो जाएगी कि अगला आपका पार्टनर आपको मुकम्मल कर रहा है. तो अगर कोई शख्स अपने ऊपर वो काम नहीं कर रहा कि अगर मेरे पार्टनर मुझे ये ट्रिगर कर रहा है, तो एक इन्विटेशन है कि मैं अपने अंदर एक बेहतरी लाऊं. लेकिन जैसा आपने कहा कि एक शख्स, मैंने अक्सर देखा है कि एक दे जा रहा है, गिविंग करे जा रहा है, दूसरा उसका एडवांटेज ले रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है आपकी उस गिविंग स्टेट को. तो मैं भी एक रिलेशनशिप से गुजरी थी और मैं उस नहज पे थी कि मैंने कब लेट गो करना है. तो मेरी थेरेपिस्ट ने कहा कि जब जब पूरा जिस्म थक जाए ना, जब तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद बता देगी कि अब नहीं हो रहा है. तो मैं वो कॉलर की बात कहना चाहूँगी कि जब हमें लगे ना कि ये चीज़ सही नहीं हो रही, तो ये हम पे लाजिम है कि हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन से निकालें कि अपने ऊपर जो ये इस्लाम यूज़ करते हैं. और इस्लाम में कहीं ये नहीं है, प्लीज़ आप मुझे इस पे वो ना कीजिएगा कि मधिया के आप सुबह सुबह शो में बातें करें, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि हमारे रिलीजन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप बेसकून और अनहैप्पी लाइफ गुजारें और जुल्म में रह के जिंदगी और गुजारें. उसको दे दें कि ये और देखिए अल्लाह ताला ने हमें वो ऑप्शन भी अगर दिया है, तो कहा है कि ये वो नापसंदीदा फेल है जिसकी मैं इजाजत दे रहा हूँ. क्योंकि आपको ये नहीं कहा कि आप इतना बर्दाश्त करें कि आप खत्म हो जाएं. जी बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन उस ख़त्म होने से पहले उनको ये समझ लेना बड़ा लाजमी है कि शादी इज़ अ टीम वर्क. एग्जैक्टली. ठीक है, ये पार्टनरशिप होती है, लाइक टीम वर्क होता है. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये शो है, ये एक टीम वर्क के लिए चल रहा है. हमारे पीछे पूरी पूरी टीम्स बैठी होती है, तो वन मैन शो कहीं से कुछ नहीं होता. लाइकवाइज शादी भी ऐसे ही, और बड़ा खूबसूरत आपका, मुझे लगता है कि शादी नहीं, आप उसको बोलें कंपेनियनशिप. थोड़ा सा जेंजी लगेगा तो समझ में भी बड़ा जल्दी आ जाएगा. तो अगर आप अच्छा एक कंपेनियन चाहते हैं, तो मुझे लगता है जो आप चाहते हैं वो आप देना शुरू करें. अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी इज्जत करे, आप उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करें. अगर आप चाहते हैं वो आपसे मोहब्बत करे, तो आप भी जरा रोमांटिक हो जाएं. तो थोड़ा सा गिव एंड टेक तो चलता रहता है. तभी शादी इज ऑल अबाउट, जो हम बोल रहे थे ना कि शादी हो गई, पर 2 दिन के बाद जाके पूछते तुम खुश हो ना, खुश हो. एंड दैट्स द वन थिंग दैट वी कीप ऑन आस्किंग द कपल अगेन एंड अगेन. पुराने ज़माने में ये होता था बाकी. तो शादी इज नॉट अबाउट खुशी. शादी इज ऑल अबाउट यू नो लर्निंग टू मैनेज योर कॉन्फ्लिक्ट्स. उनको अच्छे तरीके से आप हेल्दी वे में रिजॉल्व करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चलो, तभी वो कंपेनियनशिप पार्टनरशिप है. लेकिन अतिया जी, अपने सवाल पे मैं वापस आती हूँ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, जैसे तुबा ने भी कहा ना कि जब आपकी लिटरली आपकी बॉडी गिव अप कर दे. क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप कोई ग्रीफ भी होता है तो आपकी बॉडी का एक सेल, जब मेरी अम्मी की डेथ के बाद मुझे पता चला कि मेरी एक सेल ग्रीफ में था. इसलिए क्योंकि ट्रॉमा जो होता है दैट्स स्टोर्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड स्पेशल सेंटर्स इन योर ब्रेन. उर्दू में बात करनी है. मैं आ गई, मैं जितना उसको अवामी बनाने की कोशिश कर रही हूँ. एंड अगेन क्योंकि जेनजी तो मुझे पता है कॉलेज स्कूल में होंगे, लेकिन जो हमारी, क्योंकि माशाल्लाह जो हमारी इतनी डिफरेंट हमारी ऑडियंस है, डाइवर्स ऑडियंस है, तो सब जरा समझ सकते हैं. ट्रॉमा जो होता है ना, आसान अल्फाज में आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर होता है और आपकी मेमोरी में स्टोर होता है. आपकी मेमोरी से वो डिलीट नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपको सर्वाइवल मोड पे रख रहा है ना. वो अगर डिलीट कर देगा तो आप आगे कैसे बचोगे. तो वही की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी. जिस वक्त आपकी बॉडी ने आपको बता दिया कि सुनो अब गड़बड़ आ रही है. बहुत सी जगहों पे ये भी होता है कि सेपरेशन, डिवोर्सेस, ये सब चीज़ें नहीं भी हो रही होती है, तो हम उस रिलेशनशिप में रह के भी तो अपनी कुछ बाउंड्रीज बना सकते हैं ना. कि जो शख्स आपको जो अब्यूज़ कर रहा है, अल्लाह पाक ने भी तो कहा है ना कि जब बुराई को देखो तो उसको रोको. ठीक है, कहीं पे मुंह से रोको, कहीं पे हाथ से रोको. वो आपने हेल्दी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश की. तो आप उसी नौशीन के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, उसी रिलेशनशिप में रहते हुए हो सकता है उनके ऐसे हालात ना हो कि उस रिलेशनशिप से निकल सके. ठीक है, उधर ही रहते हुए जो है वो आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है कि जो शख्स आपके साथ ये सब चीज़ें कर रहा है, आप उसको देख लें कि उसके साथ कुछ जहनी मसला है, वो डिसऑर्डर्ड इंसान है. या समझ ले दिल में कि तो पागल है.
एग्जैक्टली आसान अल्फाज में मैं एक्चुअली यही बोलने वाली थी यस और वहाँ पे आपने हेल्दी बाउंड्रीज करनी है कि ये ना समझे इसकी बातें मेरे ऊपर इफेक्ट ही नहीं कर रही हैं वो तो इफेक्ट उस वक्त करी ना जब हम मीनिंग अटैच करें तो जब हम ये देख रहे हैं कि अच्छा ये इतना समझदार आदमी और ये मुझे कह रहा है तो फिर हमें वो तकलीफ हो रही है ना किसी बंदे से इमोशनली जब कनेक्टेड होते हो जब जिससे आप मोहब्बत करते हो जिससे आप प्यार करते हो जिससे आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो उसकी बातें आपको ज्यादा हर्ट हाँ लेकिन यहाँ पे ये भी हेल्दी बाउंड्री के मोहब्बत करना छोड़ दें वो भी सीखें डॉक्टर साहब ऐसी बातें ना करें नहीं वो भी healthy boundaries करें, आप अपने आप से देखिए मैं अपने आपको आप से एक मोहब्बत एग्जांपल करें। देती हूँ। सेल्फ लव में एक खातून ने मुझसे ये कहा कि उन्होंने वैसे ही मुझसे पूछा मेरे अपनी ज़ाती वालिद से कि आपकी जो रिलेशनशिप अपने मियाँ से आई मीन आप कैसे हंस लेती हैं उनके जाने के बाद आप कैसे खुश रह लेती हैं मैंने कहा क्योंकि मैं उस चीज़ की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी अल्लाह ने मुझे ऐसा रिश्ता दिया इट्स इनफ फॉर अ लाइफ टाइम ठीक है मुझे वो मेमोरी से खुश रखती हैं वो शुक्रगुजारी खुश रखती है एंड माई हस्बैंड वुड नेवर वांट मी टू बी अनहैप्पी ही वुड वांट टू सी मी हैप्पी तो उन्होंने मुझे यूं करके देखा तो कहने लगी पता है मेरे मियाँ अगर आज चले जाए ना मैं आज़ाद हो जाऊंगी ओह माय गॉड तो कितनी तकलीफ से एक बंदा तो मैंने पे आ गया होगा उनको ये कहने के लिए। एक्चुअली कहा जो आपने Yes, बात कही yes. मैंने कहा मुझे आप एक बात बताएं क्या आपके अब आप दिल को छोड़ दें आप दिमाग से काम लें क्या आपके पास इतने Just like she वसाइल said, हैं कि आप उनसे अलग हो सकती हैं और आप मैनेज कर सकती हैं या आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबिलिटी है या आप और भी ज़्यादा बिखर जाएंगी ये भी हो जाएगा ना मज़ीद बुरे हालात में फंस जाएं शी सेड नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैंने कहा फिर आप अपने आप को इमोशनली डिटैच कर दें आप एग्जिस्ट करें एक ही स्पेस में अपनी स्पेस अलग बना लें तो उन्होंने कुछ अर्से बाद मुझे कहा कि मैंने अपना कमरा अलग कर लिया बेहतरीन और अब हम दोनों थोड़े बेहतर हो गए हमारे हालात क्योंकि हम एक ही घर में रह रहे हैं हम ज़्यादा हमारे इंटरेक्शन कम होता है मगर हम एक ही घर में थोड़े से हमारे हालात बेहतर हो गए अब तो हम कभी कभी बैठ के इकट्ठे टीवी भी देख लेते हैं हिना जी मैं आपकी बात को सेकंड करूँ ऐसे हमने बहुत सारी ख़वातीन को देखा जो लिटरली मैं अपनी दोस्तों की मदर्स को मैंने कुछ दोस्तों की सासों को लिटरली उनके हस्बैंड की डेथ के बाद अपने लिए ज़िंदगी जीते हुए देखा है और मैंने देखा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे उनको होता है कि हमारे हम कोई रोक टोक नहीं है लेकिन दुख पता क्या होता है कि ज़िंदगी के 60 साल के बाद इस औरत ने अपने लिए ज़िंदगी गुजारना शुरू की और ये स्टडीज़ है आप पढ़ सकते हैं स्पाउस में अगर ठीक है बेगम की डेथ हो जाए तो वो जो हस्बैंड है ना उनके लिए बड़ा एकदम शौक होता है क्योंकि वो तो सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी उसकी ज़िंदगी में तो उसकी कदर नहीं होती तो बिखर जाते हाँ हैं। वो उसके बाद फिर उनका सर्वाइव करना ना ज़रा लंबे अरसे तक वो कहते हैं 6 मंथ बहुत ज़रूरी है कि आप 6 मंथ तक उनको देखें कि वो 6 मंथ तक ठीक रहें बंदे कहते हैं ज़्यादा नहीं जी पाते लेकिन ख़वातीन ज़्यादा जीती हैं क्यों क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ने अपनी उस शादीशुदा ज़िंदगी में बड़ी घुटन देखी हुई होती है और फिर कहीं जैसे आपने बोला ना कि वो आज़ाद हो जाएंगी तो फिर लेकिन पतला मसला क्या होता है फिर 60 साल 70 साल जिंदगी के जब बहुत आज़ाद खूबसूरत साल तो जा चुके होते सुनिए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा टाइम है कि जब आपको स्टेप आउट कर जाना चाहिए मुझे लगता है अगर मैं अपनी आपने मुझसे पूछा है तो ज़रूरी नहीं जो मैं बात करूं सब उससे एग्री करें मुझे लगता है कि गिव अप कहीं नहीं करना चाहिए इंसान को आपको अगर उस मोहब्बत कहते हैं 2 मरतबा होती है सेम आदमी से एक जब आपको नई नई मोहब्बत होती है और एक जब आप उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाते हैं बखूबी वाकिफ़ हो जाते हैं वो एक्चुअली स्टेज होता है असल आपकी मोहब्बत का वहाँ पर आपका इम्तिहान शुरू होता है कि अब आया आप एज अ टीम वर्क काम कर सकते हैं आपको पता है कि वो नार्सिसिस्ट है या उसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या उसको XYZ कुछ भी है वहाँ से फिर आपका असल इम्तिहान शुरू होता है वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपको लगे कि अब बहुत हो गई है खुदा न खासा कोई मार पिटाई तक बात आ गई है या उससे भी ज्यादा इमोशनल टॉर्चर होता है जो जहनी टॉर्चर होता है जी बिल्कुल तो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया जनाब कि उन्होंने भी इस बात को कह दिया जी कि हाँ, बिल्कुल emotional बिल्कुल ऐसा ही torture है जी, बिल्कुल का वो काम बहुत होगा। ज्यादा वो ट्रॉमेटिक होता है जो इमोशनल टॉर्चर होता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे आपने कहा कि वो खातून जिंदगी नहीं गुजार सकती हैं अकेले फाइनेंशियली डिपेंडेंट जाहिर सी बात है खवातीन अपने हस्बैंड पर होती हैं बहुत सारे लोगों के अपने वो नहीं होते पेरेंट्स नहीं होते कि अगर मैं डिवोर्स ले लूँ तो मैं कहाँ जाऊँ भाई के जाके बर्तन धोऊंगी मैं क्या करूँ बच्चे हैं कुछ तो अगर ऐसी जिम्मेदारियां हैं जरूरत है आपकी कि आपको उस शख्स के साथ रहना ही है तो आपको सबसे पहले आर्ट ऑफ डिटैचमेंट सीख लेना चाहिए और डिटैचमेंट के 2 मीनिंग्स आते हैं डिटैचमेंट एक तो होता है जी खत्म हो गया नो आप वहाँ पर मौजूद होते हुए भी नहीं मौजूद होते
आप अपने आप में होते हैं, सेल्फ लव में होते हैं, जाएं मैनीक्योर पेडिक्योर करवाएं, अच्छा सब लो ड्राई लें, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, जर्नलिंग कीजिए। मैं ये बात बार बार कहना चाहती थी लेकिन वो टॉपिक ऐसा मज़ेदार चल रहा था कि गुफ्तगू कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी मैं। लेकिन ये जो जर्नलिंग है, आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो Clarity of introvert mind होते भी हैं, आती है। वो कहते हैं कि नहीं अगर मैंने ये बात बता दी पता नहीं क्या सोचेगा, मुझे जज करेगा, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं। आप लिखना शुरू कर दें, आप लिखें, आप जो चाहती हैं आप लिखें, उसके अंदर जर्नलिंग करें और बहुत सारी अफर्मेशंस करना सीखें। कहते हैं अमल का दारोमदार नियतों पर है, तो ये दुनिया नियत पर ही कायम है। जो आप नियत करेंगे वही आपके अंदर से वाइब्स और फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी और कायनात अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देती है। अगर आप ब्रेन को सिर्फ यही कहें मैं ना खुश हूँ, मैं ना खुश हूँ, मैं उदास हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, विक्टिम, खुद ही से विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, आपकी जिंदगी वैसे ही गुजरना जो आप शुरू हो कह रहे हो, जाएगी। आपकी बॉडी सुन रही है, 70% ऑफ योर बॉडी इज जी वाटर, वो सुन बिल्कुल। ऐसा रहा। और देखिए इतनी टेक्निक्स हैं, वही बात है कि अवेयरनेस नहीं है, काउंसलिंग नहीं होती है, वही बात है दादी नानी नहीं बैठती, खालाएं नहीं बैठती, वरना जो काउंसलिंग है वो बहुत हेल्प करती है। वो जो आपने इन दादी चीज़ों नानी में। की बात की, तो मसला ये है कि हमारी नानी और दादियों ने भी वही बात जो मैं कहती हूँ ना कि हमने उनकी मुसीबतों को ग्लोरीफाई किया हुआ है कि उनको देखो ना, उन्होंने कैसी जिंदगी Compromise करना शुरू उनको वो- खुद उनका- जिंदगी में वो उसको वो रूम करते नहीं हैं, मिल सका glorify कि वो करते उसको हैं। वेंट आउट कर सकें। लेकिन ऑन द So, सुने जरा, पॉजिटिव जी। साइड ऑल्सो जी। मदिया, जो बड़े घरों के होते थे ना, क्योंकि बच्चे उनकी सोबत में बैठते थे तो अननोइंगली भी वो चीज़ें सीखते थे। जैसे मुझे मेरी बहन कहती है कि ये घर में छोटी थी तो इसमें वो गलतियां नहीं की जो हमने की, जो हमारी गलतियों के बारे में वो सुन सीख के रही इसने कहा थी। मैं ये नहीं करूंगी। हाँ, वो सीख रहे थे। चलिए जी, मेरे पास वक्त जो है वो अब दामने वक्त में गुंजाइश बहुत ही कम थी और आज का टॉपिक ऐसा था, जब भी किसी से मिला करें ना, उसको अच्छी सी जप्पी डाल के अपने दोस्त से तो पूछा करें खुश हो, और अगर वो नहीं बताए ना वो खुश नहीं तो बताया ना कुछ भी कर लो ना, मैं खड़ी हूँ, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। ये जुमला लोगों के लिए ना एज मेरिकल काम करता है। लोग इमोशनली थोड़ी बहुत बैकअप मिल जाती है कि चलो यार इधर चीज़ें अच्छी नहीं है, ये तो है ना मेरे लिए दोस्त खड़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रिया बाद रिया पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। ज़िंदगी नहीं तो आपसे कल मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।